नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो में। मैं लेकर आई हूं दिन भर की खबरें, लेकिन सुर्खियों पे नजर डालें उससे पहले नजर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8 करोड़ 60 लाख के पार चला गया है। वहीं भारत में 1 करोड़ 3 लाख 60 हजार से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। अगर गुजरात की बात करें तो अब तक 2 लाख 48 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं सुर्खियां। स्मार्ट सिटी वडोदरा में आधुनिक सिटी सेंट्रल ट्रांसपोर्ट हब जनमहल का शुभारंभ, लेकिन यात्रियों को परेशानी। कोरोना के चलते वडोदरा मैराथन का वर्चुअल आयोजन, सीएम रूपाणी ने कराया फ्लैग ऑफ। और गरीब जनता 1000 रुपए का दंड भरने विवश, मास्क नहीं पहनने वाले नेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं। वडोदरा को स्मार्ट सिटी बनाने के भागरूप वडोदरा रेलवे स्टेशन निकट 71.28 करोड़ की लागत से आधुनिक जनमहल बनाया गया है, जहां से आज से सिटी बस सेवा का प्रारंभ हुआ। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आज से इस्कॉन जनमहल में वडोदरा सिटी बस सर्विस स्टेशन कार्यरत कर दिया गया है। विनायक सिटी बस सर्विस के लिए विशेष रूप से आधुनिक जनमहल बनाया गया है, जहां 160 बसों के लिए करीबन 25 जितने प्लेटफॉर्म आवंटित किए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहे हैं और दूसरी ओर सिटी बस स्टेशन में यात्रियों को एक ही दरवाजा होने की वजह से आवाजाही में दिक्कतें भी हो रही है। जनमहल शुरू करने के पहले दिन ही यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस मामले सिक्योरिटी और नागरिकों के बीच घर्षण भी देखा गया। सिटी बस के जिन यात्रियों को सेंट्रल एसटी डेपो जाना होता है, उन्हें पूरा बस स्टेशन घूमकर अंदर जाना होता है, जिससे यात्रियों में रोष देखने मिला। एसटी डेपो बनाया है, एसटी डेपो चालू કર્યો। હવે બધા કહે છે કે અમારે કઈ જવાનું છે, બહારથી ઇન્ક્વાયરી પૂછે છે જતા જતા કે ભાઈ તમે કઈ જવાનું, મને ડેપો જવાનું છે, બરાબર, આ જૂના ડેપો, અને મારે જવું છે આણંદ અમદાવાદ। તો કે વાંધો નહીં, તમે ખોટા આમ ફરી ના જાઓ, તમે અંદર એન્ટ્રી થઈ, આપણે અંદર એન્ટ્રી છે ત્યાંથી જાઓ કે છે। એક પબ્લિકે જે જશે તો ખબર પડશે પબ્લિકને કે ભાઈ બસો ચાલુ થઈ જાય, ટ્રેનો ડેપો ચાલુ થાય બધું, બરાબર। હવે અહીંયા આવ્યો તો આ ભાઈ કહે છે કે મને કંઈ આગળ તમારે કે એન્ટ્રી નથી કે, તો મેં પછી બહારથી હું મોકલા કહે છે કે એન્ટ્રી અંદર છે, બરાબર, ખબર નથી તો એન્ટ્રી નથી ખબર તો પછી अंदर શા માટે મોકલે, ખોટો ટાઈમ માણસો વેસ્ટ કરવાનો। सर एग्जिट इधर से है, तो वो पहला दिन है तो किसी को मालूम नहीं है, तो वही इनको बता रहे हैं कि एग्जिट आपका इधर से है, ये खाली बस का एग्जिट है, इसके लिए उनको रिटर्न इधर से भेज रहे हैं। પબ્લિક માટે 2 એટ્રિયમ આપવામાં આવ્યા છે, જે ફ્રન્ટ સાઈડ છે રોડની, ત્યાંથી એન્ટ્રી છે અને એક્ઝિટ છે, ત્યાંથી પબ્લિકને અવર જાય। આપણે ડાયરેક્શન માટે એના સાઇનેજીસ પણ આપ્યા છે કે બસ ટર્મિનલ પર જવાનો રસ્તો કઈ બાજુ છે, ત્યાંથી એક્ઝિટ કઈ બાજુ છે। જે જનમેન બનાવ્યો છે એ સ્માર્ટ બનાવ્યો છે, સારો છે, સુવિધાઓ સારું છે, અંદર પેસેન્જરને બેસવાની પણ સારી છે, એલાઉન્સ સિસ્ટમ એલઈડી બધું સારું છે। પણ એક જ વાતની તકલીફ છે કે જ્યાં પેસેન્જર બસમાંથી ઉતરે એને બહાર નીકળવા માટે એક જ ગેટ આપ્યો છે, જે બરોબર નથી। યુનિવર્સિટી કોની બહાર નીકળવાની જે બસની છે ત્યાં પણ પેસેન્જરને ચાલવા દેવા જોઈએ, એસટી કોનો જે રસ્તો છે ત્યાં પણ પેસેન્જરને ચાલવા દે, બધા રસ્તે પેસેન્જર ચાલવા દે તો જ પેસેન્જર યોગ્ય રીતે મળી રહે। બાકી તો એક જ જગ્યા છે, જવું હોય યુનિવર્સિટી અને એને અહીંથી રેલવે સ્ટેશનના દરવાજે બહાર કાઢવાના, રેલવે સ્ટેશન કોની સાઈડનો દરવાજે બહાર નીકળવાનો, એટલે પેસેન્જર અત્યારે બહુ મૂંઝવાય છે અને બહુ જ પેસેન્જરની ફરિયાદ આવી કે ફૂટપાયરી બનાવો સાઈડમાં, અમને દરેક રસ્તે બહાર જવા દો અને બહારથી અંદર આવવા દો તો પેસેન્જર ઝાઝા મળશે બરોડાને। અત્યારે થોડા બસ સ્ટેન્ડ ઓછા લાગે કે 25 બસ સ્ટેન્ડ છે, એમાં 22નો યુઝ થાય એવું છે હાલમાં, અને આપણી પાસે અત્યારે 120 બસ ચલાવે છે, પણ 160 બસ ચલાવવાની છે, કેમ કે આ કોરોનાની મહામારીને લીધે અત્યારે બસો બંધ કરેલી છે અને 110 થી 20 બસ ચાલે છે। આપણી 160 બસ ચાલતી હતી અને પાછી શરૂ થશે, સ્કૂલ શાળા કોલેજ ચાલુ થાય ત્યારે થોડી તકલીફ પડશે। હવે તો તંત્ર એને જોશે, અત્યારે તો આપણે કોઈ રજૂઆત, પેસેન્જર રજૂઆત કરે અથવા તો કોઈ લેખિતમાં ત્યાં દે એવી અત્યારે માંગણી વધુ છે કે ભાઈ અમે ઉપર સુધી રજૂઆત કરશું। પેસેન્જરના બધા ગ્રુપ આવ્યા હતા हमारी पास। कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से बड़े बड़े कार्यक्रम वर्चुअल रूप से करने की नौबत आई है। कुछ इसी तरह हर साल लाखों लोगों के साथ आयोजित होने वाला एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन आज वर्चुअली फ्लैग ऑफ कर शुरू किया गया।
पिछले कुछ सालों से वडोदरा की पहचान बना एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन इस साल कोरोना महामारी के चलते वर्चुअल रूप से ही आयोजित हो रहा है। आज 4 जनवरी से 10 जनवरी तक वर्चुअल मैराथन का आयोजन हुआ है। मैराथन के फ्लैग ऑफ के मौके पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हर साल की परंपरा को कायम रखते हुए कार्यक्रम में वर्चुअल तौर से जुड़ते हुए मैराथन को फ्लैग ऑफ किया। भारत माता की जय। वहीं वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के चेयरपर्सन तेजल अमीन समेत के पदाधिकारी कमाटी बाग के एम्फी थिएटर से कार्यक्रम में जुड़े। मैराथन दौड़ में 41, 21, 10 या 5 किलोमीटर का वीडियो अपलोड करना है और उसी के आधार पर वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन द्वारा रनर्स को जज किया जाएगा। मैराथन में हिस्सा लेने वाले किसी भी व्यक्ति को खुद के घर के निकट या कोई भी जगह पर वो दौड़ सकते हैं और इस दौरान सरकार के द्वारा की गई कोरोना गाइडलाइंस का भी संपूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक होगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन पहली बार वर्चुअल तौर से ऑनलाइन आयोजित हुआ है। વડોદરાના અમારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, વિશ્વભરમાં અત્યારે લોકો શારીરિક માનસિક રીતે કોરોનાની મહામારી સામે લડી રહ્યા છે। કોરોનાએ આપણી આખી લાઈફસ્ટાઈલ બદલી નાખી છે। માસ્ક, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, સેનેટાઈઝર, આ બધી આદતો હવે જીવનનો ભાગ બની ગઈ છે। કોરોનાના કપરા સમયમાં વડોદરા નિવાસીઓએ વર્ષોની પરંપરા જાળવી રાખીને આ વખતે વડોદરાના મેરેથોન વર્ચ્યુઅલ રનનું આયોજન કર્યું છે। આ વર્ચ્યુઅલ રન યોજવા માટે સૌ વડોદરાના રહેવાસીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આયોજકોને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। વડોદરા એ મેરેથોનની ઓળખ બની છે। વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ મેરેથોનનું અત્યાર સુધી 9 વખત આયોજન થયું છે। કોરોનાના સંક્રમણમાં થંભી ગયેલું જનજીવનને ફરી ધબકતું કરવા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ એમજી મોટર વડોદરા મેરેથોન દ્વારા વર્ચ્યુઅલ રનનું આયોજન થયું છે। આ વર્ષની મેરેથોન ફ્રન્ટલાઇન કોરોના વોરિયર્સ, મેડિકલ કર્મચારીઓ, ઇમરજન્સી કર્મચારીઓ, આવશ્યક સેવાઓ પૂરી પાડનારા કર્મચારીઓ, હાલમાં કોરોના વાયરસ સામે લડતા તેમજ કોરોના સામે જીતી ચૂકેલા ઉપરાંત જેઓએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે તેવી દરેક વ્યક્તિને સમર્પિત છે। આ જ કારણે વડોદરા મેરેથોન દેશની અન્ય મેરેથોન કરતાં તદ્દન અલગ બની રહી છે। આ દોડને સૌના સાથ, સૌના વિકાસના મંત્રથી ઓર તેજ બનાવીએ। આ વડોદરા મેરેથોનને પણ વડોદરાના સામાજિક જીવનની સ્વસ્થતા સ્ફૂર્તિની મસાલ બનાવીએ। એ જ અભયાર્થના સાથે સૌ દોડવીરોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા की जय। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े आयोजनों में सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच बिना मास्क के देखने मिलते हैं। वहीं सड़क पर चलने वाला एक आम आदमी अगर बिना मास्क के दिख जाए तो उससे 1000 रुपए का दंड जरूर देना पड़ता है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क पहनना देश भर में अनिवार्य है और वडोदरा शहर में कोरोना की इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। कपुराई चौकड़ी निकट पुलिस ने आज सुबह सुबह सघन जांच करते हुए बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों को दंडित करते हुए उनके हजार रुपए के चालान काट लिए, जिनमें 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के वाहन चालक भी शामिल रहे। मास्क नहीं पहनना अपराध तो है ही, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो 1000 रुपयों का दंड नहीं भर पाते और पुलिस के सामने हाथ जोड़कर उन्हें माफ करने के लिए गिड़गिड़ाते भी हैं, लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुनती। आम जनता अगर मास्क नहीं पहनती है तो 1000 रुपए का दंड फौरन ले लिया जाता है, जबकि नेताओं के कार्यक्रम में हजारों की भीड़ यूं ही जुट जाती है और अक्सर नेता खुद बिना मास्क के देखने मिलते हैं। हाथ जोड़ जोड़कर लोगों से वोट की भीख मांगने वाले नेता बाद में उन्हीं मतदाताओं को सरकार और प्रशासन के खिलाफ हाथ जोड़ने के लिए विवश कर देते हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य VNM टीवी के कैमरे में भी आज कैद हुआ।
किसान आंदोलन के 40वें दिन सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन ये बैठक आज भी बेनतीजा रही और अब 8 जनवरी को फिर एक बार किसान कृषि कानून पर सरकार से बात करेंगे। कृषि कानूनों के मसले पर सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत शाम को खत्म हो गई। इस बार भी बातचीत बेनतीजा रही। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकार संशोधन तक ही जा रही है। अब दोनों पक्षों के बीच बातचीत 8 जनवरी को फिर एक बार दोपहर को 2 बजे होगी। आर्ट ऑफ लिविंग के ऋषि नित्य प्रज्ञा जी ने शहर के युवाओं की संस्था छात्र संसद के आमंत्रण पर युवाओं से मुलाकात कर जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने पर मार्गदर्शन दिया। शहर के युवाओं के हित में पिछले कई सालों से वडोदरा में छात्र संसद कार्यरत है, जो अलग अलग मुद्दों पर शहर में अपनी सेवाएं देता है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से जुड़े ऋषि नित्य प्रज्ञा जी ने अकोटा के शंग्रीला कॉम्प्लेक्स में छात्र संसद के युवाओं से मुलाकात की और जीवन में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं को शांत मन से समझाते हुए आगे बढ़ने की सभी युवाओं को प्रेरणा भी दी। आज 3 जनवरी 2021 को छात्र संसद के 2021 का फर्स्ट संडे संसद होस्ट किया जा रहा है। आज हमको आर्ट ऑफ लिविंग के डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स श्री ऋषि नित्य प्रज्ञा जी ने ज्वाइन किया है। आज वो हमारी टीम के साथ, हमारे टीम के अन्य लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे एंड वो हमारी टीम के साथ डिस्कशन कर रहे एंड वो हमको स्पिरिचुअलिटी के बारे में सिखा रहे। वो हमें हमारे अंदर की शक्ति को जगाना सिखा रहे एंड कैसे उसको हम लोग राइट डायरेक्शन में यूज़ कर सकते, एक अपने मन को शांत रख के अच्छी भावना लेके अपने सोसाइटी के लिए और कैसे काम कर सकते, वो हमको वो सिखा रहे। एंड इसी के साथ साथ वो सिखा रही है कैसे हम सुख के साथ अपना जीवन जिए एंड अलग अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्पेशली यूथ में, वो प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करें, वो प्रॉब्लम्स के साथ कैसे मूव फॉरवर्ड करें एंड कैसे अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ मेंटेन करें एंड अपनी लाइफ को हैप्पी करते करते और सारे अराउंड लोगों की भी लाइफ हैप्पी करें एंड इन दी एंड हम लोग हमारे सोसाइटी को आगे बढ़ाया जाए। एंड जो छात्र संसद अब हर संडे एक प्रोग्राम होस्ट करता है संडे संसद करके, जिसमें बड़ौदा के, गुजरात के एंड नेशनल लेवल के जितने भी रिनाउंड लोग हैं वो हमको ज्वाइन करते हैं एंड हमारे सिटी के यूथ के साथ इंटरैक्ट करते अलग अलग टॉपिक्स पे एंड एक साथ मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करते कि कैसे हम हमारे सिटी को, हमारे स्टेट को और हमारे देश को आगे ले जा पाए। वडोदरा शहर में आज सोमवार को कोरोना के 87 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके चलते शहर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,581 हो गई है। वडोदरा शहर में आज सोमवार को वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में 87 नए कोरोना केस पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। नए 87 कोरोना केस के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 21,581 पर पहुंच गया है। 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,682 सैंपल लिए गए, जिसमें से 3,595 सैंपल नेगेटिव आए हैं। कोरोना से शहर में अब तक 238 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,253 मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है, जिसमें से 1,082 मरीज स्टेबल है, 125 मरीज ऑक्सीजन पर है और 46 मरीज वेंटिलेटर पर है। आज 115 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 20,090 हो गई है। गोरवा लक्ष्मीपुरा तालाब समेत के तालाब में दूषित पानी और गंदगी को लेकर बार बार आरएसपी द्वारा वडोदरा महानगर पालिका को अवगत कराया गया है, लेकिन कार्यवाही के अभाव में आज फिर एक बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश आयरे ने साथी काउंसिलरों के साथ तालाब की साफ सफाई के मुद्दे म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन दिया। અમારા વિસ્તારની અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઉંડેરા સાથે ઉંડેરાનું આખું તળાવ તો આખું ગટરથી ભરાયેલું છે। લક્ષ્મીપુરાના ગામનું તળાવ તો ગટરથી ભરાયું છે। લક્ષ્મીપુરા શમશાનની બાજુમાં આવેલું તળાવ તો ગટરથી ભરાયેલું છે। નારાયણ ગાર્ડનથી ગોત્રી જે તળાવ છે તો બધું ગટરથી ભરાયેલું છે। કોઈ પણ જગ્યા બધું સુસુપ્ત અવસ્થામાં છે, કોઈ કામ કરવા તૈયાર નથી। અમૃતનગર પાસે જે ડ્રેનેજ છે એ તરત ભરાયેલી છે, એટલી બધી ભરાયેલી છે। પમ્પિંગ સ્ટેશનના 2 પંપ લાઈનો મૂક્યા છે તો બી એ જ પરિસ્થિતિ છે। શિવાંગ પાર્કથી ઇન્દ્રપ્રસ્થ સુધીને છેલ્લા 15 દિવસથી અમે લોકો જ્યારે 15 દિવસથી વારંવાર રજૂઆતો કરી, ત્યાંના સ્થાનિક લોકોએ રજૂઆત કરી, પણ સ્થાનિક પ્રોજેક્ટવાળા એવું કહે છે કે કોર્પોરેશનનું કામ છે અને વોર્ડવાળા એવું કહે છે કે પ્રોજેક્ટનું કામ છે। એટલે કમિશનરને કહેવામાં આવ્યા છે કે ઇન્દ્રપ્રસ્થથી જે શિવાંગ પાર્કવાળા રોડ પર છેલ્લા 15 દિવસથી ગટર ઉભરાય છે, ત્યાં કોઈ જવાનું નથી। ઉંડેરા પર સેમ પરિસ્થિતિ છે। સૂર્યોદય પાર્કનો જે વિષય છે તેમાં પણ એ પરિસ્થિતિ છે। તો જે આને ત્રણેય તળાવ, ઉંડેરા તળાવ, ગોત્રી તળાવ અને સાથે સાથે લક્ષ્મીપુરાના 2 તળાવ
કે જેની અંદર નકરું ગટરનું પાણી ભરાયેલું છે. આવનારા દિવસોમાં ખૂબ મોટો રોગચાળો ફાટી નીકળે. કોર્પોરેશનની ચૂંટણી કે જે હશે એ વિષય અલગ છે, પણ જ્યારે લોકોની સ્વાસ્થ્યની સાથે આજે પણ લોકો પોતે એક બીમારીમાંથી જ્યારે લોકો ડરી રહ્યા છે, તો બીજો આ પ્રશ્ન છે. સાથે સાથે જે અમારા જે ગોત્રી કિશન કોમ્પ્લેક્સનો રોડ હતો એ રોડનું જે કાર્પેટિંગનું છે, સમતા પોલીસ ચોકીથી જે બાકીનો રોડ છે કે જેની અંદર ગ્રાઉટિંગ કરેલું છે પણ કાર્પેટ કરવીને થાંભલાના શિફ્ટિંગનું કામ છે. ભેસાસુરવાળો રોડ છે, કુનાલ ચોકડી પાસે જે આવેલો છે, જે ક્રિષ્ના ટાઉનશીપથી સામીપ્યવાળો રોડ છે કે જેની અંદર જ્યાં કાર્પેટ કરવાના કામો છે, તો આ બધા જે કાર્પેટના કામો પણ અધૂરા છે. જે લાઇટો જે સોસાયટીઓ છે બધી સોસાયટીઓમાં લાઇટો બાકી છે, જ્યાં નાની લાઇટો મોટી કરવાની છે બધી સોસાયટીઓમાં મોટી લાઇટોના એટલે જે વિષય હતા આજે कमिश्नर ने આપ્યું છે. कमिश्नर पॉजिटिव છે. गुजरात में स्थानीय स्वराज के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तालुका पंचायत, नगर पालिका और वडोदरा महानगर पालिका के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है. स्थानीय स्वराज के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए कमर कस ली है. पिछले कई दिनों से चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. इसी क्रम में आम आदमी पार्टी द्वारा शहर जिला में तालुका पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका के प्रत्याशी घोषित किए गए, जिसमें वार्ड नंबर 1 में सिमोन ख्रिस्ती, वार्ड नंबर 4 में योगेंद्र परमार, वार्ड नंबर 5 में ऋतुराज पटेल, वार्ड नंबर 6 में अनिल बुधवानी, वार्ड नंबर 8 में उमेश जोशी, वार्ड नंबर 9 में हार्दिक पटेल, वार्ड नंबर 12 में हरिशंकर गुप्ता, वार्ड नंबर 18 में भद्रेश कंसारा का चयन हुआ है. खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन हम लेंगे छोटा सा विराम. जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ. आप देख रही है VNM न्यूज. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. बढ़ते जा रहे प्रदूषण और केमिकल से उगाई सब्जियां और फल खाने से भी हो रहा है सेहत को नुकसान. ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प है किचन गार्डन का. अपने घर की बालकनी, गार्डन, टेरेस पर किचन गार्डन बनाएं, सब्जियां और फल खुद ही उगाएं. अब किचन गार्डन बनाना बहुत है आसान. गार्डन शॉपी के साथ सुभानपुरा बालाजी नगर के गार्डन शॉपी में अवेलेबल है ट्रॉपिकल प्लांट्स, एशियन वेजिटेबल सीड्स, ऑर्नामेंटल और सीजनल प्लांट्स, हर्ब्स और बहुत कुछ. गार्डन शॉपी द्वारा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, ग्रीन हाउस मैनेजमेंट, वर्टिकल गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग पर दी जाती है एक्सपर्ट एडवाइस भी. तो विजिट करें गार्डन शॉपी, L111 बालाजी नगर, नियर समता फ्लैट, सुभानपुरा, वडोदरा. हनी एयरपोर्ट से खोडियार नगर जाने वाली सड़क की ड्रेनेज की कार्यवाही के लिए खुदाई की जा रही है, जिससे वडोदरा महानगर पालिका का 9 करोड़ रुपए का खर्च बेकार हो गया है, जिस पर सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची ने आपत्ति जताई है. एरपोर्ट थी खोडियार नगर जतो मुख्य रोड है. आ रोड ने 9 करोड़ રૂપિયાના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો હતો. હાલમાં खोडियार नगर पास आवेल सुवेज ट्रीटमेंट प्लांटનું ટ્રીટ કરેલું પાણી IOCL ने આપવાનું હોવાથી વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ રોડમાં નળિકા નાખવાના ભાગરૂપે ખોદકામ કરી રહી છે. વડોદરા મહાનગર સેવા સદન દ્વારા સંકલનનો અભાવ અહીંયા સામે આવ્યો છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા પાણી, ડ્રેનેજ, લાઇટ તમામ વિભાગો દ્વારા સંકલન નહીં કરવાના કારણે આજે રોડ ખોદવાનો સમય આવ્યો છે. एक बाजू वडोदरा शहरना नागरिकों वेरो भरे छे, वेरानुं वर्तन नहीं मळतुं. आ रोड शिवालय कंस्ट्रक्शन द्वारा 9 करोड़ रूपियाना खर्चे बनाववामां आवता. हालमां आ रोड पर नळिका बनावीने वडोदरा शहरना नागरिकोने वेरानुं वळतर आपवानी जग्याए वेरानुं वळतर आपी रह्या छे. वडोदरा शहरना म्युनिसिपल कमिश्नर साहेबने अमारी मांग छे के कोईपण मोटुं काम करता पहेला संकलन भेगुं करे, संकलन कर्या बाद ज नवा काम करे एवी अमारी मांग छे. शहर का पर्यावरण बचाने और प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के लिए शानदार ग्रुप द्वारा कमाटी बाग में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया.
शानदार ग्रुप और आरएसएस द्वारा प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पर लोगों को जागरूक करने के लिए कमाटी बाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्लास्टिक से होने वाले पोल्यूशन से कैसे बचा जा सके उस पर स्किट के जरिए शहर के नागरिकों को जागरूक किया गया। शहर के नागरिकों से प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने का अनुरोध कर शहर का पर्यावरण बचाने में सहयोग करने की शानदार ग्रुप द्वारा नागरिकों से अपील भी की गई। અત્યારે અમે કમાટી ગાર્ડનમાં ભેગા થયા છે। છેલ્લા ઘણા વખતથી અમે પ્લાસ્ટિકના પોલ્યુશનને અટકાવવા માટેની એક મુહિમ ચલાવી રહ્યા છે અને સૌથી બેઝિક કારણ છે કે સૌથી મોટું પ્લાસ્ટિક જે રોજિંદા વપરાશમાં છે એને આપણા માટે કામનું તો છે, પણ આપણે એને પોલ્યુશનમાં જે કન્વર્ટ કરીએ છીએ એ નથી કરવાનું। એટલે જે પ્લાસ્ટિક આપણા ઘરમાં આવે છે એની આપણે ઇકો બ્રિક બનાવવાની છે। ખાસ કરીને સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક આપણે વાપરવાનું ઓછું કરવાનું છે અને જે પણ ઘરમાં પ્લાસ્ટિક આવે છે રેપરના ફોર્મમાં એને આપણે ઇકો બ્રિકમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે અને ઇકો બ્રિકમાંથી ઘણી સરસ સરસ વસ્તુઓ બનતી હોય છે, એટલે પ્લાસ્ટિકનું પોલ્યુશન તો અટકશે અને સાથે સાથે કંઈક નવું કન્સ્ટ્રક્ટ પણ કરી શકીશું। रावपुरा के सरकारी स्कूल एक को तोड़कर यहां अर्बन हेल्थ सेंटर बनाने की कवायद जारी है, जिस पर एडवोकेट कमल पंड्या ने अपना विरोध जताया है। शहर के रावपुरा इलाके में सरकारी स्कूल नंबर 1 है, जहां कुछ कार्यालय कार्यरत है, लेकिन इस ऐतिहासिक स्कूल को तोड़कर आने वाले दिनों में प्राइमरी अर्बन हेल्थ सेंटर बनाने की योजना प्रस्तावित है। ऐसे में इस ऐतिहासिक इमारत को तोड़ने पर नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के पूर्व उपाध्यक्ष, कांग्रेस के नेता और वकील कमल पंड्या ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह को इस मामले पत्र लिखा है। जे सयाजीराव महाराजना समयमां પોતે દીર્ઘદ્રષ્ટા હતા અને જેઓએ શિક્ષણ પ્રત્યે રુચિ હતી, જેથી ઘણી સ્કૂલ બિલ્ડિંગો આવી બનાવેલી છે અને જે ઐતિહાસિક બિલ્ડિંગો છે। હવે આ બિલ્ડિંગોને સાચવવાના બદલે આપણે તોડી અને તેની અંદર આવા બધા જે ગતકડા ઊભા કરી રહ્યા છે બરાબર નથી। કોર્પોરેશન પાસે પોતાના પ્લોટો છે, એ પ્લોટોમાં આ ઉપયોગ કરે એને બદલે વેચીને એની આવક ઊભી કરી રહ્યા છે, બરાબર નથી। હવે કોઠી બિલ્ડિંગ થોડા સમયમાં કલેક્ટર કચેરી શિફ્ટ થવાની છે, એ બિલ્ડિંગ બી સારામાં સારી બિલ્ડિંગ છે, ત્યાં આગળ હેલ્થ સેન્ટર બની શકે એમ છે અને વિશાળ પાર્કિંગની બી જગ્યા છે। તો રાવપુરા શાળા નંબર 1 તોડી અને ત્યાં અર્બન સેન્ટર બનાવવાના બદલે આ અર્બન સેન્ટર કલેક્ટર કચેરીમાં બનાવવામાં આવે તો ઘણી સુવિધા અને પ્રજા માટે બી સારું રહેશે। ઘણા સારા મહાનુભાવોએ પોતાનો અભ્યાસ કરેલો હતો। ડૉક્ટર ઠાકોરભાઈ પટેલ કે જેઓ માજી મેયર કે જેમણે વડોદરાને નેચરલ ગેસ આપ્યો, એ અને જેઓ પોતે આરોગ્ય મંત્રી હતા, તેમજ રિઝર્વ બેંકના માજી ગવર્નર ડૉક્ટર આઈજી પટેલ કે જેઓ આ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરેલા હતા। એ જ રીતે આ સ્કૂલમાં ઘણા જજો છે, ધારો કે શૈલેષ મજમુનદાર કે જેઓ સુપ્રીમ કોર્ટ જજ સુધી પહોંચેલા, તેઓ પણ આ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરેલા હતા। એને સાચવવાની જવાબદારી રાજ્ય સરકાર અને કોર્પોરેશનની છે અને મેં આ અંગે પત્ર લખ્યો છે। એ પત્ર મેં મુખ્યમંત્રીને લખ્યો છે, રાજુભાઈ માજી ચેરમેન હતા, અધ્યક્ષ શ્રી વિધાનસભા તેમને પણ લખ્યો છે અને શહેર પ્રમુખ વિજયભાઈ શાહને લખ્યો છે કે જેઓ હાલમાં જ તેમણે ન્યાય મંદિરને મ્યુઝિયમમાં ફેરવવા માટે પ્રયત્ન કર્યા અને સફળ થયા છે। તો મારી એટલી વિનંતી છે કે આવી હેરિટેજ બિલ્ડિંગો તોડવાને બદલે તેની સાચવણી થવી જોઈએ અને આવા હેલ્થ સેન્ટર કે એવા બહાના હેઠળ આવી બિલ્ડિંગો તોડવી ના જોઈએ। विश्वामित्री नदी के तट पर बसे हुए कामनाथ महादेव मंदिर की सफाई इन दिनों नवनाथ कावड़ यात्रा समिति द्वारा कर ऐतिहासिक निर्माण को फिर एक बार उजागर किया जा रहा है। वडोदरा शहर की रक्षा चारों दिशाओं से नवनाथ महादेव करते हैं। नवनाथ महादेव में से एक कामनाथ महादेव का अति प्राचीन मंदिर विश्वामित्री नदी के किनारे पर था। यह मंदिर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय में बना हुआ है। मंदिर के ऐतिहासिक कई निर्माण समय के साथ विश्वामित्री नदी के तट में दफन हो गए थे, जिसकी सफाई इन दिनों नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा समिति के अग्रणी नीरज जैन की अगुवाई में संस्था द्वारा कराई जा रही है। यहाँ पुराने जमाने की कई सीढ़ियों के साथ साथ संतों की समाधि समेत के निर्माण पाए गए हैं, जिसकी मरम्मत और नवनिर्माण की कार्यवाही इन दिनों जारी है, जिस पर जानकारी दी नवनाथ महादेव कावड़ यात्रा कमेटी के अग्रणी नीरज जैन ने। आ समाधि आ जे जग्या छे, आ बाजुना बे मंदिरो, आ बाजुने एक जे मंदिर छे एक्ઝેક્ટ पाछळ देखाय छे, एने कलर करवानुं, एने चोख्खो, एने सरखुं करवानी जवाबदारी एक देवी पूजक समाज एटले आपणे एम के वाघरी समाज, वाघरी समाजना एक भाईए आजे सवारे अहींया महादेवना दर्शन करवा आया। एणे कह्युं के आ जवाबदारी हूँ लઉં છું અને કાલથી એના માણસો મોકલીને શરૂ કરવાનો છે। એટલે લોકોના મનમાં છે। मैं છેલ્લા 14 દિવસથી દરેક જગ્યાએ હું કહી રહ્યો છું કે મને એક પોકલેન્ડ આપો, તો જેનાથી આ બધો કચરો, આ કચરો નથી પરંતુ આ
ખાતર છે એ વડોદરા શહેરના બગીચાઓમાં વાપરી શકાય, કોર્પોરેશન આના પૈસા ઊભા કરી શકે એમ છે. સાથે સાથે આ અહીંયા કામનાથ મહાદેવમાં અટલ અખાડો હતો, અત્યારે પણ છે. ભારતની સંસ્કૃતિ મુજબ જે 7 અખાડા એમાંનો એક અખાડો કામનાથમાં છે. તો એ અખાડાના જે સંતો, જે સાધુઓ જેમણે અહીંયા સમાધિ લીધી અથવા તો જેમણે દેહ છોડ્યો એમની આ 8 સમાધિ મળી આવી છે. હું આપના દ્વારા વડોદરા શહેરની જનતાને એવું કહું છું કે આ કામ આપણા સૌનું છે. તમે અહીંયા આવો, કામનાથનો ઓવારો જુઓ અને તમને એવું લાગે કે આ ભવ્ય વિરાસત છે તો એક પગથિયું એક જણ લઈ લે તો આને રિપેરિંગ થઈ જશે, આ જીર્ણોદ્ધાર થઈ જશે. મંદિરમાંથી જે નિર્માલ્ય નીકળે ભગવાનને ચડાવેલું મહાદેવને, એના માટે જે કૂવો છે એ કૂવાની નીચે સીધી લાઈન વિશ્વામિત્રીમાં જાય છે. એ આ કચરાના કારણે એ લાઈન ચોકઅપ થઈ ગઈ છે, એના કારણે પણ ત્યાં પાણી ભરાય છે, પાણી નથી એટલે એ પણ કાઢવાની છે. આવું અનેક વાત બહાર આવી રહી છે. જેમ પેલું ત્યાં ગુફા જેવું મળ્યું છે, આગળ ખોદીશું એટલે ખબર પડશે. વાવનો દરવાજો મળ્યો છે. પરંતુ મારું એવું કહેવું છે કે બધા લોકો આવો, આપણે સૌ સાથે મળી વડોદરા શહેરની આ ભવ્ય વિરાસતને આપણે સાચવીએ, જાળવીએ અને એનો जीर्णोद्धार કરીએ, આવું મારું માનવું છે. सूरत में 2021 के साल का पहला ऑर्गन डोनेशन डोनेट लाइफ संस्था के जरिए ब्रेन डेड विष्णु प्रहलाद पटेल का किया गया। सूरत की संस्था डोनेट लाइफ द्वारा ऑर्गन डोनेशन करना चाहते लोगों को आवश्यक सुविधा प्रदान की जाती है और अन्य लोगों को अंग दान कर दूसरों की जिंदगी में नया सवेरा लाने की प्रेरणा भी दी जाती है। पटेल परिवार के विष्णु पटेल को डॉक्टर्स द्वारा ब्रेन डेड डिक्लेयर किए जाने के बाद परिवार ने उम्दा निर्णय लेते हुए उनका हार्ट, लंग, किडनी, लीवर, कॉर्निया डोनेट कर महावीर ट्रॉमा हॉस्पिटल के सहयोग से डोनेट लाइफ संस्था की सहायता से दान कर दिया और कई लोगों को नई जिंदगी प्रदान की है। भाजपा कांग्रेस के अलावा तीसरा विकल्प बीटीपी के रूप में गुजरात की जनता को मिल रहा है। इस क्रम में अरवली जिले में भी बीटीपी द्वारा प्रत्याशी उतारने की तैयारी की जा रही है। झगड़िया के विधायक छोटू वसावा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई थी और अरवली जिला निकट के आदिवासी इलाकों में 3 विधानसभा की बैठक जीतने में वे सफल भी रहे थे। अब बीटीपी और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में बीटीपी ने अरवली जिले में भी एंट्री की है। जिले में आदिवासी बहुमत वाले भिलोड़ा में बीटीपी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष रमेश वसावा की उपस्थिति में पार्टी कार्यालय का प्रारंभ किया गया। पार्टी के अध्यक्ष द्वारा यहां स्थानीय स्वराज के चुनाव में बीटीपी के प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की भी घोषणा की गई। આજે ખાસ ભિલોડામાં પાર્ટી કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવાનું હતું અને પાર્ટી કાર્યાલય ન બની રહેતા લોકોનું એક શક્તિ કેન્દ્ર અને એક અધિકાર કેન્દ્ર, એક હકનું કેન્દ્ર બની રહે એટલા માટે અમારો આ પ્રયાસ છે। હમણાં જિલ્લા પંચાયતની સ્વરાજ ચૂંટણીઓ આવી રહી છે, એમાં ભિલોડામાં પહેલીવાર पंचायतनी चूंटणीओ लड़वानी होय, पहली वार ज आदिवासीओ भारतीय ट्राइबल पार्टी में सफलता प्राप्त करी तो अवश्य अमे भारतीय ट्राइबल पार्टी भिलोडा में बॉडी बनावीने ज रहीशुं। स्थानीय स्वराज के चुनाव गुजरात में नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी रणनीति में जुट गए हैं। इसी के भागरूप अरवली जिले में भारतीय ट्राइबल पार्टी द्वारा कार्यालय का प्रारंभ किया गया है। भिलोड़ा तालुका कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहां भाजपा का भी काफी वर्चस्व देखा जाता है। ऐसे में आने वाले स्थानीय स्वराज के चुनाव में बीटीपी यहां दोनों पार्टियों को टक्कर देती हुई नजर आएगी। आप बैठा छो ए ज साचा आदिवासी छो અને તમે જ લોકો આદિવાસીઓને મદદ કરશો, આદિવાસી માટે કામ કરશો, લડશો એવી હું અપેક્ષા રાખું છું। आदिवासी
आइए देखते हैं खबरें फटाफट। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 40वां दिन रहा। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों ने सरकार के साथ 8वें राउंड की बातचीत की। मीटिंग में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि भी दी। किसानों को समझाने के लिए सरकार ने कानूनों के हर क्लॉज पर चर्चा की और उससे पहले किसानों ने यह साफ कर दिया था कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो प्रदर्शन तेज किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पति रॉबर्ट वाड्रा से इनकम टैक्स विभाग की टीम ने पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा से ये पूछताछ बेनामी संपत्ति के मामले हो रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी संपत्ति के मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस भेजा था, लेकिन वह इनकम टैक्स के दफ्तर नहीं पहुंचे। ऐसे में इनकम टैक्स की टीम पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा के घर पहुंची। मुंबई सेशन कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर छोटा राजन और 3 अन्य को जबरन वसूली के मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाई। छोटा राजन पर साल 2015 में पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर को धमकाकर 26 करोड़ की जबरन उगाही करने का आरोप है। पुलिस के पास बिल्डर के कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज में साबित हुआ है कि आरोपी बिल्डर के कार्यालय गए थे। साथ ही पुलिस को उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली है। एक बार फिर भारतीय यूजर के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डेटा चोरी होने की खबरें आ रही है। साइबर सुरक्षा मामलों के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया ने दावा किया है कि देश के करीब 100 मिलियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों के डेटा डार्क वेब पर बेचे जा रहे हैं। डार्क वेब पर मौजूद ज्यादातर डेटा बेंगलुरु स्थित डिजिटल पेमेंट गेटवे जस्ट पे के सर्वर से लीक हुआ है। एक रिसर्च के मुताबिक ये डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। लीक डेटा में भारतीय कार्ड धारकों के नाम के साथ उनके मोबाइल नंबर, इनकम लेवल्स, ईमेल आईडी, पेमेंट अकाउंट नंबर और कार्ड के पहले और आखिरी 4 डिजिट की डिटेल्स भी शामिल है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कुछ दिनों से पंजाब में जियो के मोबाइल टावरों को निशाना बनाया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के जरिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उपद्रवियों पर सरकारी प्राधिकरणों द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए याचिका दायर की है। इससे पहले कंपनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। माउंट आबू निकट बस की ब्रेक फेल हो जाने से बस दुर्घटना का शिकार बनी। इस बस में 25 यात्री सवार थे और बस आबू रोड की ओर से आ रही थी। उस दौरान वीर बाबा मंदिर निकट बस का ब्रेक फेल होने से ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर से काबू गंवा दिया और बस बेकाबू होकर पलट गई। घटना में 1 यात्री की मौत हुई है जबकि 12 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 5 यात्रियों की स्थिति गंभीर होने से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। देश के कई राज्यों से अचानक बड़ी संख्या में पक्षियों की मरने की खबरें आ रही है। हर साल सर्दियों के मौसम में पशु पक्षियों की मुसीबतें तो बढ़ी जाती है, लेकिन उनकी लगातार हो रही मौत से अलग बर्ड फ्लू की चिंता पैदा हो गई है। गुजरात में भी 53 पक्षियों के मरने की खबर, राज्य का प्रशासन और शासन दोनों ही चौकन्ना हो गया। इस खबर से पक्षियों की मौत के पीछे बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश के जूनागढ़ स्थित बाटला गाँव में 2 जनवरी को 53 पक्षी मृत मिले थे। 62 साल की एक महिला ने 1 साल में 1 करोड़ 10 लाख का दूध बेचकर हर किसी को हैरान कर दिया है। इस महिला का नाम नवलबेन है, जो गुजरात के बनासकांठा जिले के नगाणा गांव की रहने वाली है। इस महिला ने 2020 में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का दूध बेचकर रिकॉर्ड बनाया है। दूध बेचकर वे हर महीने 3.5 लाख रुपए का मुनाफा कमा रही है। उनका कहना है कि इस साल भी वो कामयाबी दोहराएगी। गुजरात में सूरत के कोसंबा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक टेक्सटाइल फैक्ट्री से झारखंड के वांटेड नक्सली अनिरुद्ध सिंह उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया है। सूरत पुलिस ने रविवार को बताया कि ये पिछले 3 सालों से फैक्ट्री में मशीन मैकेनिक था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फैक्ट्री में आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और पैराशूट का कपड़ा तैयार किया जाता है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल भी खड़ा हो जाता है। बादलों के बिखरने और उत्तर पूर्वी हवाओं के चलने से गुजरात में फिर एक बार ठंड शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम पारा 2.3 डिग्री तक गिर गया है। इससे रात में और सुबह ठंडी का एहसास हो रहा है। आगामी 4 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। सौराष्ट्र में कोल्ड वेव का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। आने वाले सप्ताह में सूरत सहित दक्षिण गुजरात में शीतलहर के आसार हैं।
राजपीपला नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस के ऑब्जर्वर संग्राम सिंह राठवा ने कार्यकरों के साथ बैठक का आयोजन किया और चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार की। कांग्रेस के ऑब्जर्वर संग्राम सिंह राठवा ने राजपीपला करजन रेस्ट हाउस में विधायक पीडी वसावा, जिला अध्यक्ष हरेंद्र वालंद समेत के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर राजपीपला नगरपालिका के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। अंकलेश्वर के सरदार अस्पताल में कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय अहमद पटेल को श्रद्धांजलि देने के भाग स्वरूप फ्री मेडिकल और सर्जिकल कैंप आयोजित किया गया। स्वर्गीय पटेल की स्मृति में 4 से 6 जनवरी तक आयोजित इस मेगा कैंप में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, महिलाओं की बीमारियां और ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपी के जरिए जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, किडनी, प्रोस्टेट जैसी कई बीमारियों की सर्जरी निःशुल्क की जा रही है। वडोदरा जिले के डेसर में मध्य गुजरात मुस्लिम समाज सेवा द्वारा मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन मूसा रईस का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मूसा रईस ने डेसर तालुका के रातड़िया गांव का नाम विश्व फलक पर मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में रोशन किया है, जिसके चलते मुस्लिम समाज के अग्रणियों द्वारा उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम के जरिए मुस्लिम समाज के लोगों में खेलकूद के क्षेत्र में युवकों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। झगड़े एपीएमसी में नए वाइस चेयरमैन की नियुक्ति की गई है। एपीएमसी के वाइस चेयरमैन युवराज सिंह बारोट द्वारा इस्तीफा दिए जाने से नए वाइस चेयरमैन के रूप में धरौली गांव के पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उपस्थिति में सर्वानुमति से वाइस चेयरमैन के रूप में पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर भरूच तालुका के वरेड़िया निकट होटल सवेरा के पास से पालेज पुलिस ने कत्ल के इरादे से ले जाई जा रही भैंसों से भरा हुआ टेम्पो जब्त किया। इस मामले एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। आयसर टेम्पो नंबर GJ16Z1854 में 15 जितनी भैंसें भरी हुई थी, जिन्हें वडोदरा से सूरत की ओर ले जाया जा रहा था। टेम्पो चालक के पास से कोई परमिट नहीं मिले होने से टेम्पो चालक कमलेश चौहान के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। संजीव मेडिकल ट्रस्ट वडोदरा और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान से पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर VC पटेल, जो पूर्व मेयर भी थे, उनकी 7वीं पुण्यतिथि के मौके पर वडोदरा के विभिन्न इलाकों में मास्क वितरण किया गया। करीबन 20,000 जितने मास्क निःशुल्क बांटकर सभी को कोरोना महामारी के दौरान मास्क पहनने की अपील भी की गई, ताकि वह कोरोना संक्रमण से और साथ ही पुलिस द्वारा किए जाने वाले 1000 रुपए के दंड से खुद को बचा सके। VNM न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी रात को 11 बजे टॉप 5 न्यूज़ के साथ, लेकिन आप हर पल जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए पल पल की खबरें VNM TV की YouTube चैनल पर और VNM TV के Facebook पेज पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।